Good morning, everyone. So today I am going to take an important topic in English, that is preposition. So आज हम preposition के बारे में जानेंगे that what it is. ठीक है, तो ये होता क्या है आपका. So it is one of the important part of the speech in English. So as we all know कि there are 8 parts of the speech in English. So one of them is preposition. So it is very useful in writing also and speaking also, because if you want to make correct sentences, so it is very useful for that. Without it we cannot make the sentences correct, because it shows relation. So now we have to come to the definition, that what does it say. So what does it mean. तो हम आज definition में देखेंगे that what, ठीक है, it is telling about. So you can see here that preposition is a word which shows relationship among other words in the sentence. So जैसा कि आप जानते हैं कि that in the sentence you get verb also, noun also and object also. So it comes before the noun. So you can see that preposition, so means pre means पहले, position means a place. So the place means any word which get its place before noun. तो कोई भी वर्ड आपका नाउन से पहले अगर आता है आपका, सो इट इज़ द प्रपोजिशन. एंड व्हाट इट डज, सो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड द ऑब्जेक्ट. इट शोज रिलेशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर नाउन. तो दोनों नाउन का क्या रिलेशन है आपका. सो वी शो दैट रिलेशन, उस रिलेशन को हम जो शो करते हैं, वी शो इट बाय द प्रीपोजिशन. तो अगर हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट यूज़ अदर वर्ड्स विच आर नॉट फॉर टाइम. तो हमें अगर टाइम के लिए कोई प्रीपोजिशन को यूज़ करना है, सो वी हैव टू यूज़ अ पर्टिकुलर वर्ड. सो नाउ इट मीन्स कि आपका जो नाउन और प्रोनाउन, सो इट कम्स एज अ सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस. सो इफ वी वांट टू शो रिलेशन, अगर हम नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से शो करना चाहते हैं, सो टू शो द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव केस, जो कि नाउन ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होता है आपका, एंड इट इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो. सो वी शो, ठीक है, the relation between these two things by using the preposition. Now you have to see some examples here which are given, that she went to the store. So you can see that we are showing the relation between the pronoun and the store here. So in this sentence you can see that the relation which is shown by, ठीक है, द वर्ड टू, जो वर्ड यहाँ पे आपका टू आ रहा है आपका, इट इज़ अ प्रीपोजिशन एंड इट इज़ कमिंग बिफोर द स्टोर, एंड स्टोर इज़ अ नाउन. सो इट मीन्स इट कम्स बिफोर नाउन, सो प्रीपोजिशन. सो ये आपका इस वर्ड से टू से हम क्या शो करें, वी आर शोइंग द डायरेक्शन इन दिस. नाउ कम टू द सेकेंड, दैट ही केम बाय बस. सो यू कैन सी दैट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि वो कैसे आया था आपका. सो यू कैन सी दैट दे आर यूजिंग अ सोर्स, ठीक है. सो दैट हाउ ही केम, सो ही केम बाय बस. सो बाय इज अ प्रीपोजिशन विच इज put before the bus here. Now in the last two sentences you can see that at and under. So these are the two prepositions which are used. So you can see in the third one that is used before 3 o'clock, and in the fourth one you can see that before table it is used. Now come to the preposition list, that what are the different prepositions which are used to show the relation. So there are different words which are used here. So you can see abroad, about, above, according to, across, after, against. So these are coming by word a. इसी तरीके से आप देख सकते हैं that there are other words also which are, and some of the most common prepositions which are used. So I have to talk about those now. So most common prepositions जो आपकी यूज़ होती हैं, so these are in, on, at, by, below, behind, है ना, to also, towards also, in front of also, after also. So there are into also. So these are the some prepositions which are used to show the relation. Now I will come to the next thing. So it is types of preposition. So now you can see that kinds or types of the prepositions. So there are two types of the prepositions which we categorize, या उसको हम डिवाइड करते हैं. सो वन इज सिंपल prepositions and another is compound prepositions. So let's discuss the first one, that is simple prepositions. So in simple prepositions, the prepositions which consist only of one word. तो जो भी prepositions आपका वन वर्ड वाली होती हैं, so they come in the category of the simple prepositions.
सो यू कैन सी देयर आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे हैं, जैसे इन, ऑन, एट, विद, अगेंस्ट. सो दीज आर नॉट यूज्ड विद एनी अदर वर्ड, सो दे आर यूज्ड सिंगल. तो ये है ना, अकेले यूज़ होती हैं आपका सेंटेंस के अंदर टू शो द रिलेशन. सो दीज आर सिंपल प्रपोजिशंस. Now come to the compound prepositions. So prepositions which consist of two or more words. But you see there are some prepositions which are made up of two or three words. So these are compound prepositions. There are some examples which are given. So you can see instead of. So it is made up of two words, instead or of. इसी तरीके से आप देखेंगे इन द मिडिल ऑफ. सो दैट यू कैन सी दैट इन इज़ ऑल्सो हियर, मिडिल इज़ ऑल्सो हियर, ऑफ इज़ हियर, द इज़ हियर. सो दे आर फोर वर्ड्स विच आर कमिंग. सो दिस इज़ द ओनली प्रपोजिशंस, है ना. तो आप देखें ये एक प्रपोजिशन है आपका, सिंगल है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. सो इट इज़ अ कंपाउंड प्रपोजिशंस. नाउ वी विल डिवाइड इट according to the different situations. So what are the different situations? So you can see that we divide the prepositions also in different categories. तो अब different categories में हम prepositions को divide कर सकते हैं. That it can be on the basis of time also. So time के basis पे हम divide कर सकते हैं. And if we want to show the relation, ठीक है, ऑफ टाइम एंड प्लेस, उसके बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ प्रपोजिशंस को आपका. एंड देयर आर सम प्रपोजिशंस विच आर यूज्ड फॉर एजेंट्स एंड थिंग्स. तो मीन्स किसके ज़रिए कोई चीज़ हो रही है आपका, एजेंट्स है आपका, यस टू शो अबाउट थिंग्स, तो वहाँ भी हम प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं. एंड देयर आर सम फ्रेजल प्रपोजिशंस, सो है ना, जो कंपाउंड प्रपोजिशंस आपने देखी थी. सो दीज आर कंसिडर्ड एज द फ्रेजल प्रपोजिशंस. सो वी विल टॉक वन बाय वन अबाउट देम. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. सो पोजीशन के बेस पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं या प्लेस के बेस पे जो वर्ड यूज़ होते हैं प्रपोजिशंस के अंदर. सो दीज आर ऑन, इन, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, थ्रो and around. So these are the some prepositions which are used for the position or the place. So we will talk one by one. So you can see in these pictures. तो इन पिक्चर्स में आप देख रहे हैं that there are two nouns which are used. तो दो नाउन को यूज़ करा गया आपका. So we can understand it very easily. तो आसानी से इसको हम समझ सकें. So you can see the first one, that is on. So you can see that एक आपका एप्पल है, आपका एक बॉक्स है आपका. सो व्हाट दे आर डूइंग, सो इट मीन्स दैट इफ़ एनीथिंग टचेज और टच द एनीथिंग, अगर एक नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है आपका, एंड मीन्स वन इज़ ऑन द अदर. तो एक दूसरे पे है अगर आपका, एंड इफ दे टच, सो इन दैट केस द प्रपोजिशन विच वी विल यूज, दैट इज़ द on here. Now if something which is inside of anything, take an example that Ram is in the room. So it means I am showing the relation between Ram and the room. तो राम जो है आपका रूम के अंदर है. सो यहाँ पे मैंने इन को यूज़ करके आपका दैट आई हैव शोन द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ. सो इन फ्रंट ऑफ मीन्स इफ समथिंग विच इज़ इन ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई फेस, कोई मेरे सामने कोई चीज़ है आपका, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ. सो इट इज़ कंपाउंड पोजिशन. ये कंपाउंड पोजिशन है, आप देख सकते हैं दैट थ्री वर्ड्स आर कमिंग इन दिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक दैट ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करा है आपका टू शो द रिलेशन. नाउ कम टू द अंडर. तो अंडर का मतलब है दैट यू कैन सी दैट एप्पल इज़ अंडर द बॉक्स हियर. तो अगर कोई किसी के नीचे कोई चीज़ होती है आपका, सो इन दैट केस what we do, so we have to use under as a preposition. तो वहाँ पे हम under preposition का यूज़ करेंगे आपका. so like sometimes you say that he is sitting under the tree, तो वो आपका ट्री के नीचे बैठा है. so it means that I am showing the relation between tree and the person here. now come to the behind. so आप देखते हैं कि that apple जो है आपका वो क्या है, behind the box है आपका, उसके पीछे है आपका. so it means if something is behind of anything या anyone, तो उस केस में हम behind का यूज़ करते हैं आपका. लाइक अगर कोई मेरे पीछे खड़ा है आपका, सो व्हाट आई विल से दैट राम, ठीक है, स्टैंड्स बिहाइंड मी. सो वो मेरे पीछे खड़ा होता है आपका. सो इट मीन्स दैट आई एम शोइंग द रिलेशन बिटवीन राम एंड आई, सो बाय यूजिंग बिहाइंड. ये नाउ कम टू द थ्रू. सो इफ़ समथिंग विच पासिस, ठीक है, किसी के थ्रू कोई चीज़ पास होती है आपका, सो इन दैट केस व्हाट वी यूज़, सो थ्रू. लाइक दैट वाटर इज़ पासिंग थ्रू अ पाइप. सो पाइप के थ्रू क्या हो रहा है आपका, दैट वाटर इज़ गोइंग.
तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करते हैं आपका। नाउ यू कैन कम टू द बिसाइड, सो मीन्स नेक्स्ट टू। इफ़ समबडी इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो अगर कोई मेरे बिल्कुल बाद आपका बैठा हुआ है आपका, सो इट मीन्स इन दैट केस व्हाट आई विल से दैट बिसाइड, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका, सो दैट राम सिट्स बिसाइड मी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज बिटवीन। सो बिटवीन दैट यू कैन सी दैट द एप्पल, ठीक है, एन एप्पल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। यहाँ पे आपका एप्पल जो है आपका वो दो बॉक्सेस के बीच में है। सो इफ़ वी शो द रिलेशन बिटवीन द बॉक्सेस एंड द नाउन्स, इट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग बिटवीन हियर। सो बिटवीन इज़ यूज्ड बिटवीन, जो आपका वर्ड है आपका वो यूज़ होता है आपका जब हम दो के बीच में कोई चीज़ होती है आपका। इफ़ एनीथिंग विच इज़ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू नाउन के बीच में अगर कोई चीज़ है तो उस केस में बिटवीन का यूज़ करेंगे आपका। जैसे मैं कहूँ कि दैट सोहन जो है राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है आपका, तो रोहन इस, ठीक है, सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम। सो इट मीन्स दैट आई एम शोइंग द रिलेशन बिटवीन दीज टू। Now come to the next one, that is around. So around means that if there are so many things which are around any noun, अगर कोई बहुत सारी चीज़ें आपका किसी के आसपास हैं आपका, मीन्स दैट उसको घेरे हुए हैं आपका, so it means we use around as a preposition at that time. Take an example, like when my grandfather comes at home, so everybody sits around him. तो अगर जब हमारे ग्रैंडफादर आते हैं आपका तो सब क्या है उनके चारों तरफ बैठ जाते हैं। बिकॉज इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग, सो आई एम शोइंग द रिलेशन बाय यूजिंग अराउंड एज अ प्रीपोजिशन। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन द पार्ट 2। थैंक यू सो मच।